So let's get started the new topic from the unit, some basics concepts of chemistry, class 11th chemistry, and here a subtopic is law of chemical combinations. So here we can see that in previous classes we learn about two basics law. The first is law of conservation of mass and the second one is law of constant proportion. While we are dealing with the unit, some basics concepts of chemistry, then we are introduced with the three more law of chemical combination. The third one is law of multiple proportion and the fourth one is Gay-Lussac's law of combining volumes. As in the previous classes हमने दो लॉज तो पहले ही पढ़े हुए हैं, जो अभी थ्री न्यू लॉज आए हैं उनके बारे में हम वन वन करके एक्सप्लेन करेंगे. एंड द लास्ट इज एवोगैड्रोस लॉ. Who discovered this law? I mention here, and what it states, let's see one by one. The first law of chemical combination is law of conservation of mass. This law we already learned in our previous classes. Mass can neither be created nor can be destroyed. हम किसी भी चीज को कभी भी बना नहीं सकते, ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं. It can only change from one form to another. As in our previous classes we learned that जो matter है it is having a three state solid liquid gas and these are interconvertible states. जो matter है वो solid से liquid, liquid से gas में convert हो सकता है. So in any condition we are not able to create anything or destroy anything. ना किसी चीज को नष्ट कर सकते हैं ना किसी चीज को बना सकते हैं. It is only changing from one state to another. So this law states that mass can neither be created nor be destroyed. Mass या matter कभी भी बनाया नहीं जा सकता, ना कभी खत्म किया जा सकता है. It is only changing from one form to another, and this law discovered by Antoine Lavoisier. The total mass of the reactant, जब भी कोई chemical reaction होता है, whatever the mass of the reactants are there, it must be equal to the mass of the product. जो प्रोडक्ट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, बट whatever we are having on a left hand side it must be equal on a right hand side. Here one example is written, कार्बन by weight हमने 12 ग्राम लिया है, ऑक्सीजन as one atom is having a 16 gram, so by जो 2 है that is 32 gram. and कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन जाएगा, then what we are having here that is a 12 plus 32 44. So whatever we are having on our left hand side it is equal to the right hand side. कभी भी जो मैटर है वो खत्म नहीं हो सकता, ना आप उसे बना सकते. This what is the law of conservation of mass. Now come to the second law of chemical combination, that is a law of constant proportion. इसे हम law of definite proportion भी कहते हैं. What it says that a compound prepared by any method contain same element in the fixed ratio. आप किसी भी मेथड से अगर किसी कंपाउंड को बनाते हैं और बनाने वाले एलिमेंट सेम हैं, देन इट इज हैविंग अ फिक्स्ड रेशियो. वो जो एलिमेंट जो बना रहे हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करेंगे वाटर की. अगर मान लो आप वाटर प्रिपेयर करते हैं, इट कैन बी गेट प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एंड इट विल गिव अस अ H2O. अब ये जो आपने यूज किया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप किसी भी वे से वाटर बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, क्लासरूम में बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं, मेजर स्केल पे बनाते हैं, देन दिस बोथ ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो. ये हमेशा क्या रहेगा, इनकी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी.
अगर आप रेशियो देखें, व्हाट इज द रेशियो, हाइड्रोजन जो मास है वो 1 है, तो 2/16 क्या हो जाएगा, 2/16, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास एंड 2 है तो 2 एंड ऑक्सीजन 16, तो रेशियो क्या रहेगा 1:8। सो वट एवर इज योर मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी कंपाउंड, मैंने यहाँ वाटर का एग्जाम्पल लिया, हम किसी का भी ले सकते हैं, अमोनिया का भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी ले सकते हैं, वट एवर द मैथड वी आर यूजिंग, हम किस मैथड से उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर जो एलिमेंट उसे बना रहे हैं इफ दे आर सेम देन दे ऑलवेज बेयर अ फिक्स रेशियो, उनकी रेशियो हमेशा ही फिक्स रहेगी। अगर हम बात करें अमोनिया की, फॉर एग्जांपल आप अमोनिया की बात कर लेते हैं, हम अमोनिया बना रहे हैं, किससे बनाएंगे हम लोग इसको, वी विल मेक इट विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड वी आर गेटिंग दिस, ये मिल गया, यहाँ पे 14 नाइट्रोजन का जो वेट है एंड विद हाइड्रोजन 3, तो आप कहीं पर भी चले जाएं दे आर हैविंग, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा तो ये और लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, देन रेशियो विल बी सेम। अमोनिया में भी वो कहाँ पे भी है, सॉइल में है या वॉशरूम में जो स्टिंकिंग स्मेल आ रही है, या वट एवर इज द सोर्स, द रेशियो विल बी द फिक्स, रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। नाउ द थर्ड लॉ, that is the law of multiple proportion, and this law is discovered by John Dalton. What it says that कोई भी 2 एलिमेंट वो अलग अलग तरीके से कंबाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी दे सकते हैं, वट एवर द प्रोडक्ट इज देयर। यहाँ पे जो कार्बन है उसका जो वेट है वो फिक्स रहेगा, किसका वेट फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑक्सीजन का, एक बार वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और सेकेंड टाइम वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये वो 2 एलिमेंट्स है, कोई भी हो सकते हैं, इनकी भी बात कर सकते हैं, किसी की भी आप बात कर सकते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट, या हम इन दोनों की भी बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर बनता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बन सकता है, बट लेट्स सी ओनली वन एग्जांपल हियर, डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। क्या कहता है, when 2 elements here एग्जाम्पल में मेरे 2 एलिमेंट जो है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, combine to form 2 or more chemical compounds, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। जब 2 एलिमेंट अलग अलग वे से रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, देन द डिफरेंट वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे जिसका वेट डिफरेंट है दोनों में, दैट इज ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। So the weight of the element which is having a difference in both, that is oxygen here, combine with the fixed weight of another, किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, कौन फिक्स है, कार्बन, another bear a simple ratio to one another। so यहाँ पे जब भी कोई 2 एलिमेंट किसी एक ऐसे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं जिसका मास दोनों में सेम रहेगा, वो जो एलिमेंट जिसका वेट दोनों में अलग अलग है उनकी भी रेशियो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, एंड दैट इज दी ऑक्सीजन हेयर। ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन दोनों में फिक्स है, कौन फिक्स नहीं है, ऑक्सीजन 16/32, दैट इज 1/2, they bear a simple ratio। तो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 2 एलिमेंट अलग अलग तरीके से कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, और वो जो एलिमेंट जिसका मास दोनों में अलग अलग है उन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो सिंपल रेशियो रहेगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज द गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। This law discovered by Joseph Louis Gay-Lussac, इन्होंने इसे डिस्कवर किया। What it states that
जब भी गैसेस कंबाइन होती हैं, दे ऑलवेज कंबाइन इन अ वॉल्यूम। ऐड नहीं करना है, हमने देखना है कि वॉल्यूम कितना कवर किया उसने। तो व्हाट स्टेट इट्स ये लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर गैसेस कंबाइन और रिएक्ट, दे रिएक्ट इन अ वॉल्यूम। मतलब कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स रहेंगे, पहले हम उन्हें बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग के बाद जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा दैट इज द वन। सिंपल, उसे ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन लिखा है, तो 1 + 1 2 नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे ये 2 लीटर 1 1 के करके है, बट ये जो 2 है दैट इज बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग, ऐड नहीं किया है। 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है और ये 2 जो है वो एडिशन से नहीं आया है, दिस 2 इज ड्यू टू द बैलेंसिंग। तो यहाँ पे क्या है, कितना वॉल्यूम बनेगा ये बैलेंसिंग से पता चलता है, ऐड करके पता नहीं करना है। फॉर इसी में हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि मानो ये हाइड्रोजन है गैस, क्योंकि गैस के बारे में बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस, और हमें क्या मिलेगा, दैट इज दी, हम यहाँ पे वाटर वेपर फॉर्म कर रहे हैं। नाउ वी आर नॉट सेइंग कि ये 1 और 1 हमने बैलेंस करना, यहाँ हाइड्रोजन 2 है 2 हो गए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है। व्हाट वी विल डू, अगर मैं इसे इस तरह से बैलेंस करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ वी विल नॉट से कि 2 + 1 हमें 3 लीटर जो है वो वाटर वेपर मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, 2 लीटर। तो यहाँ आपने बैलेंसिंग करके देखना है कि कितना वॉल्यूम बनता है, ऐड नहीं करना है। तो व्हाट इट स्टेट्स दैट कि जब भी कोई गैसेस कंबाइन करती हैं, दे ऑलवेज कंबाइन इन वॉल्यूम्स, मीन्स वॉल्यूम बैलेंस करके चेक करिएगा। एंड देयर मस्ट बी कंडीशन इफ दे आर एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों गैसेस का वो कंबाइन तभी करेंगे जब दोनों का जो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। देन द लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू दी some basics concepts of class 11th chemistry, that is a Avogadro's law. This law is discovered by Amedeo Avogadro. This law states that equal volume of every gases at standard temperature and pressure contain same number of moles और same number of molecules. जित कोई भी गैस है, अगर वो 273 केल्विन टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, किसी भी गैस को अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अवेलेबल है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे दैट इज द 6.022 into 10⁻23, इतने सभी में रहेंगे। अगर सभी गैसेस इस टेम्परेचर और प्रेशर पे अवेलेबल हैं, then they all contain same number of molecules or moles. For example, यहाँ दिया है कि 22.4 लीटर कोई भी गैस हो, 22.4 लीटर of any gas at STP standard temperature and pressure contains 6.022 into 10⁻23 molecules. तो यहाँ पे जो STP है that is the standard temperature and pressure. Temperature should be 273.15 Kelvin and pressure should be 1 atmosphere. ये कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी गैस इस टेम्परेचर पर सेम जो है या इस जो जिनका वॉल्यूम, किसी भी दो गैसेस हैं अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कंडीशन एट स्टैंडर्ड temperature and pressure. So see you soon in the next video with more interesting topics. For any doubt, just give me a comment in my comment box.